Good morning, all of you. Today we are going to start our new chapter, frequency diagrams. There are three types of frequency diagrams. First, histogram, second, polygon, and third, ogive. In histogram, we will solve two types of questions. First one is with equal class interval. Second one is with unequal class interval. Next one is polygon. Polygon can be made with the help of histogram and without the help of histogram. Then we will study frequency curve. There is some difference between polygon and frequency curve. All the process is similar, but only a little bit difference is there. The difference is very important. And last one we will study ogive. Ogive is of two types, less than ogive and more than ogive. We have already studied that how a normal class interval is converted into less than series and more than series. This will apply here. Firstly, you have to convert the series into less than and more than. Then you have to make the diagram. So these all things we will study in this chapter. Now first, histogram of equal class interval. Now first thing is that what is the difference between the bar diagram, pie diagram and these types of diagram? All are diagrammatic presentation, but what is the basic difference? The basic difference is that those diagrams, that is bar diagram and pie diagram, are of values. Now these are of value and frequency. That diagrams were only of values, and these diagrams, that is histogram, polygon, frequency curve and ogive, all are of frequency and value. Clear? Next. Now this is an example. Histogram of equal class interval means, you all know that what do you mean by class interval? This is a class. If difference is same, then it is known as equal class interval. Histogram of equal class interval. Now marks are given 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. Number of students are given 5, 10, 15, 12, 8, 20 and 4. So now what we have to do? We have to represent them into a histogram. So first thing you have to keep in mind that histogram, in histogram, values will come on x-axis and frequency will come on y-axis. Number of students, number of labor, these all are frequency. So now I am making one histogram. The maximum value is 20 and the values are 4, 8, 12, 15, 10, 5. So we can use the difference of 2. This is y-axis, this is O, and this is x. You have to take the difference of 2. 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, and you can use one extra for the safe side. 20 is there maximum value, so you can use one extra. On the x-axis you have to use the difference of 10 because class interval is 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, and last one is 70. Now what you have to do, 0 to 10, the frequency is 5. So 5 will come between 4 and 6. Now one more thing, in bar diagram there was gap between two bars, but in histogram there is no gap. So 0 to 10, then it will be 10 to 20, frequency is 10. So like this you have to make, it will go up to 10. Next, 20 to 30, frequency is 15. So 15 will come between 14 and 16. Next, 30 to 40, frequency is 12. So you have to make the diagram like this. This will go up to 12. Next, 40 to 50, frequency is 8. So diagram will go up to 8. Fifty to 60, 20. And last 60 to 70, 4. So this is known as histogram. Okay, these are marks and these are number of students. I hope it is clear to all. Next one is little bit typical. हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। जब आपकी क्लास इंटरवल अनइक्वल हो तो आपको हिस्टोग्राम कैसे बनाना है, उसका एग्जांपल है। देखो 10 to 15 है वीकली वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है आपको 7, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 60, 60 to 80, ये आपको गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। इसमें मेन यूज आपके दोनों चीज़ों का होगा, वीकली वेजेस का भी होगा और नंबर ऑफ वर्कर्स का भी होगा। इसमें क्या करना होता है, आपको फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना होता है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास, जो भी आपकी क्लास है उसकी क्लास इंटरवल क्या है, उसको आपको डिवाइड किससे करना है, लोएस्ट क्लास इंटरवल से। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है एडजस्टमेंट फैक्टर का। जो क्लास इंटरवल है कंसर्न्ड क्लास की क्लास इंटरवल जो है उसको डिवाइड किससे करोगे आप, लोएस्ट क्लास इंटरवल से। अब देखो इसमें डिफरेंस आप देखो 10 to 15 में 5 का है, 15 to 20 में भी 5 का है, 20 to 25 में भी 5 का है, 25 to 30 में भी 5 का है, 30 to 40 में डिफरेंस चेंज हो गया। इसी रीजन से इसका
इसका नाम क्या है, अनइक्वल क्लास इंटरवल। फिर 40 to 60 फिर चेंज हो गया, पहले 10 का डिफरेंस था, ये 20 का हो गया, और ये 60 to 80 20 का डिफरेंस। तो आप एक काम करो, सबसे पहला काम ये करो कि जितने भी क्लासेज हैं उनका क्लास इंटरवल आप एक बार लिख लो। ये फर्स्ट वाले का है 5, सेकंड वाले का भी है 5, थर्ड वाले का भी है 5, फोर्थ वाले का 5, फिफ्थ वाले का 10 है 30 to 40 में, नेक्स्ट 40 to 60 में 20, और 60 to 80 में भी 20 का डिफरेंस है। फिर आपको क्या करना है, इसको डिवाइड किससे करना है, लोएस्ट क्लास इंटरवल से। लोएस्ट क्लास इंटरवल कितना है, देखो आप इनमें से सबसे लोएस्ट क्या है, 5 है, तो 5 से आप डिवाइड कर दो, सबको 5 से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट फैक्टर। 5/5 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 1, 10/5 ये 2 हो जाएगा, 20/5 ये 4 हो जाएगा, और ये भी 20/5 क्या हो जाएगा, 4। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला ये है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड कर दो आप एडजस्टमेंट फैक्टर से। ये फॉर्मूला है आपकी, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। मतलब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। तो फर्स्ट वाले में तो 7 डिवाइड बाई 1, सेकंड वाले में 10 डिवाइड बाई 1, थर्ड वाले में 27 डिवाइड बाई 1, फोर्थ वाले में 15 डिवाइड बाई 1, फिर नेक्स्ट वाले में 12/2, फिर 12/4, फिर 8/4, ये हो जाएगा आपके 7, ये 10, ये 27, ये 15, ये 6, ये 3, और ये 2। ये आपके क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, तो ये आपको पहले ये चीज़ आनी चाहिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ की साइड क्या है कि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में वैल्यू हाईएस्ट कितनी है, 27 है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये ग्राफ बनाना है। कुछ वैल्यूज़ ऐसी भी है 12, 27, 10, तो ज़्यादा आपके बेनिफिशियल ये रहेगा आपके लिए कि आप 2 का गैप ले लो, तो सारी वैल्यूज़ उसमें क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 27 हाईएस्ट है, तो वो उससे ज़्यादा हो गया आपके 28। इस साइड आपको देखो क्या करना है, 10 to 15, 15 to 20 है, पर 10 से 80 तक जाना है आपको वैल्यूज़, तो 10 से 80 तक जाना है, इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको आप 10 का गैप ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 80। फिर आपको क्या करना है, 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेनी है। ये फ्रीक्वेंसी नहीं लोगे, अब आप क्या लोगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लो। 10 to 15 की ये 7, और 15 आपके इसके बीच में आएगा, 10 और 20 के, 7 आपके 6 और 8 के। ये आपको देखो ऐसे डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम सेम तरीके से ही बनाना है, सिर्फ मेन चीज़ क्या थी आपके, ये कैलकुलेट करना कि एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है। मेन चीज़ इस टॉपिक में यही है कि आपको एडजस्टमेंट फैक्टर और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आनी चाहिए, बाकी तो सेम चीज़ें ही हैं। फिर 10 to 20 में कितना है, सॉरी 10 to 15 हो गया, 15 to 20 में कितना है,
फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 10, तो 15 to 20 में 10 है, ये हो जाएगा आपके 10। नेक्स्ट देखो आप 20 to 25, 20 to 25 की फ्रीक्वेंसी है आपकी एडजस्टेड करी हुई 27 है, ठीक है। तो 20 to 25 को आपका डायग्राम कहाँ तक जाएगा, 27 तक जाएगा। 27 आपके 26 और 28 के बीच में आएगा। 20 to 25 है, इसलिए आपको 30 तक नहीं जाना है, सेंटर तक ही लेना है, ठीक है। ये हो गया आपके 20 to 30 का। नेक्स्ट है आपके 25 to 30, इसकी फ्रीक्वेंसी है 15। 25 to 30 यहाँ तक और 15 ये यहाँ तक आपके 14 और 16 के बीच में आएगा। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट अब आपके है 30 to 40, और फ्रीक्वेंसी जो एडजस्ट करी वो है 6। 30 to 40 में 6 तक जाना है आपको। अब ये थोड़ा आपके इसकी विड्थ जो है जो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। 30 to 40 में 6। नेक्स्ट है आपके 40 to 60, तो आपने एडजस्ट करी है फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है 3। 40 to 60 में 3, ये 2 और 4 के बीच में, 40 से 60 तक जाना है आपको। ये 40 to 60 और ये आपकी 3 तक। लास्ट है आपके 60 to 80 की 2, तो ये आपके बन जाएगा 60 to 80 की। तो आज आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में 2 टाइप्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं, एक तो जिसमें इक्वल क्लास इंटरवल होती है और दूसरा जिसमें अनइक्वल क्लास इंटरवल होती है। नेक्स्ट वाले वीडियोस में अपन पढ़ेंगे कि बाकी के जो हैं वो कैसे आपको सॉल्व करने हैं। हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपके जो भी है, आपके पॉलीगन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, ओजिव है, ये आप नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।